इस वक्त लेके चलेंगे मुंबई, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। है बहुत बहुत धन्यवाद। आज एमपी सरकार द्वारा आयोजित यह इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सिर्फ एक सेशन ही नहीं देवी और सज्जनों, बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर हार्ट ऑफ इंडिया तक एक ऐसी मजबूत पार्टनरशिप है, उसकी एक ऐसी पहल है, एक ऐसी शुरुआत है जो सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि साझा समृद्धि और विश्वास में भी नजर आएगी। हम आज यहाँ मध्य प्रदेश की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, जैसा कि मैंने कहा, इसकी अनंत संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए एकत्रित हुए हैं, विकास की एक नई कहानी लिखने जो आए हैं। देवी और सज्जनों, हमारे अतुलनीय भारत की संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आगाज, उसका आरंभ प्रकाश और ज्ञान के साथ होता है। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यह मंगल दीप प्रज्वलित होगा। माननीय डॉक्टर यादव, आपसे ये अनुरोध है कि आप शुभ दीप को प्रज्वलित करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से ये विनती है कि इस परंपरा में अपना भी योगदान दें। May we request the dignitaries seated on the stage to please join our Honorable Chief Minister in lighting of the ceremonial lamp. The knowledge and inspiration. May we request all of you to please stand with the lamp being lit for a group photograph. बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ माननीय महोदय जी और हमारे विशिष्ट अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं, सम्मान समारोह के लिए इसी के साथ देवी और सज्जनों, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों, एक बार फिर से देवी और सज्जनों, सम्मान सिर्फ एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। श्री सिंह मंच पर विराजित हमारे अन्य गणमान्य अतिथियों को भी सम्मानित करेंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों, थैंक यू वंस अगेन। हमारे विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण से समाज और उद्योग जगत में एक स्थान बनाया है, और ना ही सिर्फ वो बल्कि एक नई दिशा भी प्रदान करी है। श्री सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर डूइंग द ऑनर्स। और इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ उद्घाटन संबोधन के लिए मैं डेस्क पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नील सी रहेजा, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी ऑन रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, प्रमोटर के रहेजा कॉर्प। श्री रहेजा, प्लीज। Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Mr. Raghvendra Kumar Singh, IS, Principal Secretary, Department of Industry Promotion,
dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. Firstly, good evening to you all, and thank you for waiting. The program was a little late because the flight was running late. We at CI have had the opportunity of welcoming the Honorable Chief Minister the last occasion as well. And CI has had a wonderful partnership and worked very closely with the government. And I must comment here that our Chief Minister has been extremely dynamic, and since he's taken over, we've seen a new vigor in the state, creating new activity, not only on the industry side, but across different activities. And we've seen a lot of investment coming into Madhya Pradesh in the last couple of years specifically. There's been 72,000 crores of projects underway, another 2.9 lakh crores of projects which have been announced, which are on planning stage in smart cities, housing, urban mobility, industry, and various other long-term corridors. Madhya Pradesh is a very strategic location and has been working very closely with the central government on putting forward its programs, both in terms of industry, skilling, agriculture, and created a very unique destination. And at CI, we've had a unique opportunity to work very closely with the government and bring this platform together, and in the past work on various other opportunities for investors like yourselves to come in. Our personal experience has been phenomenal. In the last 15 years, we've been in the state and had an excellent experience. It's a very proactive government, both at the political level and the bureaucracy level. You know, we found a very easy opportunity to work, invest, and the government's been extremely supportive whenever we've had a chance to work with them or talk to them. So with this, I'd like to thank you all for coming in. And once again, Honorable Chief Minister, thank you for giving us the opportunity, and welcome to Mumbai. श्री रहेजा, थैंक यू सो मच. सचमुच संभावनाओं से परिपूर्ण है द राज्य ऑफ मध्य प्रदेश. इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डेस्क पर श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन. सो प्लीज. वंदे मातरम. गुड इवनिंग. मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित श्री दिलीप सांघवी जी, चेयरमैन सन फार्मा, श्री नील सी रहेजा जी, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी रियल एस्टेट एंड हाउसिंग और प्रमोटर रहेजा कॉप, श्री इस्तराज अंबस्था, CMD ECGC, श्री सतीश पाई, MD हिंडाल्को, श्री अजीत कुमार जैन साहब, MD एंड CFFO इप्का लैब, मिस्टर आंद्रे एकहोल्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर हेटिज, श्री रविकांत कपूर जी, वाइस प्रेसिडेंट FIO. सबसे पहले आप लोगों ने इतनी देर तक प्रतीक्षा की और विलम्ब हुआ कार्यक्रम में, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करते हुए मध्य प्रदेश में जो निवेश की इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उनके बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा. सो द क्वेश्चन arises that why on earth anybody should choose Madhya Pradesh, and the answer lies in the fact that Madhya Pradesh has been a land which can be designated as a land of peace and tranquility. कभी वहाँ से अशांति या कुछ उस तरह की खबरें आपको नहीं मिलेंगी. ऑफ प्रोडक्शन, बी इट लैंड, लेबर एंड इंडस्ट्रियल वाटर, एनीथिंग you count in factors of production, you will find Madhya Pradesh has always been the most competitive and ज़्यादा profit आपको वहाँ पे बनाने का मौका है. We have abundance of industrial land bank, around 100,000 acres. We have we are the center of the entire country, and we have great connectivity through our airports, railways network, and more than 500,000 kilometers of very good highways and road network. We are mineral rich state
We have highest producers of copper, manganese, diamond, and big presence in coal and limestone also. So many cement companies and coal production, Madhya Pradesh is the highest in entire country. We produce electricity at a very affordable rate, and we have abundance of electricity. We have more than our requirement. So we have 31 gigawatt of installed power capacity, and that too with 20% of green power which we are supplying today. जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पूरे देश के लिए संदेश है, उनका मार्गदर्शन है कि 550 गीगावाट हम 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे. So Madhya Pradesh is also going to give a big contribution in that target for India, और we are trying to have it 5 times जो आज के स्टेटस है. और उस समय जो हमारा एनर्जी बुके होगा वो करीब 50% पर ग्रीन पावर से होगा. We have industrial corridors, we have great institutes of repute, abundance of water at a very affordable rate, more than 1000 billion cubic meter. For logistic and other purposes, we have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park that is going to be created in Pithampur near Indore, and abundance of skilled manpower at a very low cost. And finally, zero man days loss. So Madhya Pradesh has worked well in Government of India supported parks. So we have mega footwear and accessories cluster at Muraina, Plastic Park in Gwalior, Medical Devices Park and Vikram Udyog Puri, Ujjain, PM Mitra Park, which is a textile garment park which has been inaugurated successfully just a few days back by Honorable Prime Minister sir. We have a plastic park, and we have renewable energy and power equipment manufacturing at Narvadapuram near Bhopal. So we are doing well with Government of India support. Now the policy support of Madhya Pradesh ने Honorable Prime Minister साहब के हाथों 18 नई पॉलिसी बिल्कुल अपडेटेड पॉलिसीज़, और आई कैन वाउच कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर कंट्री. और जिस भी सेक्टर की पॉलिसी आपको है तो 18 नई पॉलिसीज मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर की हैं. सो प्रेजेंटली आई विल टॉक रिगार्डिंग लिटिल बिट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी. सो वी हैव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस अप टू 40%. We have some multipliers regarding multipliers with employment multiplier is there, export, priority area, and foreign direct investment multiplier is there. So over and above IPA, you are going to get that. 50% of green industrialization infrastructure support is there, export, freight subsidy of 50%, 25% support in R&D facilities, and VGF for industrial housing provision is also there. And then if you want to create your own private industrial park, there too Madhya Pradesh policy supports you like anything. We give 50% fixed capital expenses, 100% waiver of stamp duty and registration fee, and 50% on green industrialization. Now we have given some additional incentives for RE manufacturing and high value added sectors. And apart from the things which I have told you earlier, that 50% concession in development charges will be given to you. 50% on quality certification support will be given to you. For high value added, additional capital subsidy up to 30%, and reimbursement on quality certification, skill development assistance, etc. can also be given. So इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तो हमारी पॉलिसी के हैं. इफ़ यू इन्वेस्ट इन हाई वैल्यू एडेड सेक्टर मोर देन 75 crores, we can give you customized package which is if your investment is beyond 75 crores. और अगर आपका RE इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है तो हम आपको 250 करोड़ से ऊपर हम आपको कस्टमाइज पैकेज दे सकते हैं. And that meeting is chaired by Honorable CM sir,
who incidentally happens to be industry minister also. So the kind of priority honorable CM has given to industrial sector and प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं और अभी संबोधित कर रहे हैं। नील रहेजा जी, चेयरमैन CII, श्रीमान अम्बस्था जी, सतीश पाई जी, अजित कुमार जैन जी, आंद्रे जी, रविकांत कपूर जी, हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आप सब मित्रों, आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बदलते दौर में अपने सबके आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने कैसी करवट ली है, हम सब देख रहे हैं। आप सब तो वो दौर से अपने अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के आ रहे हैं जहां कई चुनौतियां भी थी, कई प्रकार के झंझावातों के बीच भी आपकी उद्यमशीलता के बलबूते पर आपने अपने अपने मुकाम को हासिल किया है। क्योंकि ये बात सही है कि देश के अंदर परिस्थितियां, देश के अंदर की उद्यमशीलता, आपकी जिजीविसा वो कभी कम नहीं रही। इसीलिए आज नहीं, हजारों साल से भारत की पहचान सब प्रकार से एक प्रगतिशील देश के नाते से रहती आई थी। इसलिए वो हमारी अच्छाई भी कभी कभी, जैसे ज़्यादा मीठा भी कहीं ना कहीं तकलीफ दे जाता है, तो विनम्रता, सरलता, सज्जनता, सबको लेके चलने का भाव, सरलता से किसी को भी अपनी सारी व्यवस्थाओं के सूत्र दे देने के परिणाम दुष्परिणाम में कैसे बदलते हैं। दुनिया के अंदर कोई देश इस सारी बातों का शिकार हुआ तो दुर्भाग्य से हमारा भारत हुआ है, जहां समुद्र तट के बंदरगाह भी जो विकास के पर्याय होते हैं वो हमारे को गुलामी के रास्ते पे ले गए। अतीत के क्रम में 200-300 साल पुरानी बात है, लेकिन आज बदला है समय। हमारे बंदरगाह भी सुरक्षित है, हमारे समुद्र भी विशाल लहर लेते हुए दुनिया के सभी महासागरों की तरफ कदम बढ़ाते हुए, आज दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहां मोदी जी जाए और आनंद नहीं आए। ये आज बदलते दौर का भारत, इसका एहसास हम सबको हो रहा है। और कितने सेक्टर खोल दिए माननीय मोदी जी ने। कोई एक सेक्टर हो तो बात समझ में आती, अभी तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि अब हम कौन कौन से सेक्टर में जाएं। रहेजा जी से मैं पूछ रहा था कि कौन कौन से सेक्टर में हो, तो आपने कहा IT से लगा कर रियल एस्टेट तक, और अब तो आने वाले समय में हमारे रक्षा उत्पादनों के लेकर के कितनी प्रकार की संभावना कहाँ से खुल रही है। और ये प्रत्येक क्षेत्र हमको अपने कामों को बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बोलना चाहूँगा, आज बदलते दौर में ये हमारे लिए गया जमाना कि हमारे पास केवल कहीं अपना बंदरगाह हो तो व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब तो एयर कार्गो का जमाना आ गया है और मध्य प्रदेश अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, ऐसी 18 प्रकार की नीतियां हमारे PS ने अभी आपके सामने रखी है। और जो सरलता से करने वाली बातें हैं, कई प्रकार की अच्छी बातें, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है और लैंड बैंक के साथ बिजली भी सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहीं से वो दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। हमें इस बात का आनंद भी है। इस बात के लिए एक बड़ा भविष्य की संभावना वाला सेक्टर है। और उतरे ही नहीं, उसके साथ साथ IT का सेक्टर, रियल एस्टेट में भी इंदौर मेट्रोपॉलिटन हमने बनाया, भोपाल मेट्रोपॉलिटन बनाया, जबलपुर ग्वालियर तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ IT के सेक्टर से लगा करके हेल्थ सेक्टर, अभी सन फार्मा के माननीय संघवी जी ने तो बताया ही है। हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन और उससे लगे हुए जहाँ जहाँ भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है, क्योंकि हमारी सरलीकृत व्यवस्था एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें, मूल रूप से मैंने अपने मंत्रालय के सब काम तो सबको बांटे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी तरफ जा रहा है
और भविष्य के 47 की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो सभी राज्य सरकारों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। तो हमने भी कहा सब विभाग दे सकता हूं, लेकिन उद्योग विभाग मुख्यमंत्री रखेगा ताकि सरलता से काम कर सके, उसमें संवाद हो सके। क्योंकि जब हम अच्छा काम करने जाएंगे तो एक अवसरों को, ये बात सही है कि उद्योगपति अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ाने के साथ वो सुव्यवस्था भी चाहते हैं। अव्यवस्था से व्यापार नहीं बढ़ता है, अव्यवस्था से परेशानी बढ़ती है, और सुव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वो उसमें बात का भी पक्का होना चाहिए, काम का भी पक्का होना चाहिए और व्यवस्थाओं के भी पक्के होना चाहिए। सरकार के बलबूते पर हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो समयबद्ध से सुशासन की नीतियों के बलबूते पर, लेकिन हमने कहा हमारी पॉलिसियां तो है ही, जितने प्रकार की पॉलिसियां उससे सरलता से आप सबको वो पॉलिसियों से बताएंगे, लेकिन उससे बढ़कर के भी हमारे पास अगर अपना निवेश हमारे सम्मान के साथ आता है तो CCIP की हमारी बैठक हर 15 दिन में हम करते हैं। और मुख्यमंत्री आपके साथ में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में जिस प्रकार से हमने अतीत के भी पिछले 2 साल से लगातार हमने अपने पूरे प्रदेश के अंदर की एक एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट को ला करके सब प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। वैसे तो दिलीप जी बताएंगे, देवास जैसा छोटा सा स्थान, मुझे लगता है 1 लाख की आबादी का भी नहीं था जब आपने अपना काम खोला होगा, लेकिन आज देवास मेट्रोपॉलिटन में आ गया है। आपके ये जो बदलते दौर के समय में मध्य प्रदेश जो बदल रहा है, हमारे पास सभी प्रकार की संभावना के साथ चलने का जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है। अब ये आज का समय भी ऐसा है, जब मैं महाराष्ट्र में आकर बात कर रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र से अलग नहीं हूँ, महाराष्ट्र से हमारा अतीत का संबंध है। हमको मालूम महाराज शिवाजी ने अगर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो हमें गर्व है। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पंवार, ये पूरा हमारा एक अलग अतीत का गौरवशाली पृष्ठ है। अगर हमारे देवालय के ध्वजा अगर महाकाल की लहरा रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराज शिवाजी का है। हमें इस बात का आनंद है, उस पर गर्व भी है। उस चुनौतीपूर्ण काल में भी बहुत दम से, अलग अलग प्रकार से, कठिन काल भले ही होगा, लेकिन हमारी सामर्थ्य के बलबूते पर देश के कई राज्यों ने अपनी पहचान बनाई, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। तो जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर आज एक तरफ महाराज शिवाजी का, छत्रपति जी का हमारा योगदान दिखाई देता है, तो हमारे यहाँ विक्रमादित्य से लगा के राजा भोज का संबंध भी दिखाई देता है। ये दोनों काल उस नाते से भी जाने जाते हैं कि सुशासन की मिसाल, लोकतंत्र की मिसाल, वीरता की, दानशीलता की, उद्यमशीलता की, पराक्रम की, पुरुष की, यश की, कीर्ति की, प्रसिद्धि की, सारी चीज़ों को अगर किसी एक व्यक्ति में देखना चाहो तो 2000 साल पहले के विक्रमादित्य में वो सब देख सकते हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे राज्य के गौरव है, जिनके कारण से आज भी लोग विक्रमादित्य की उन सारे गुणों को जान करके उनसे सीखना चाहते हैं। और आज का युग, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम इतना ही कहने आए कि आप महाराष्ट्र में भी काम बढ़ाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी आप उसका ही भाई है, जोड़ीदार प्रदेश है मध्य प्रदेश, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसे एहसास पाएंगे। मैं आप सबको निमंत्रित करने आया हूँ, पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एमपी के विकास के मुख्य शिल्पकार, एमपी के उज्जवल भविष्य के आधार, माननीय महोदय जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी अन्मया से इंक्लूसिव विचारों से आज हम सभी अभिभूत हैं। इस शानदार कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रविकांत कपूर, वाइस प्रेसिडेंट फियो। सर प्लीज। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निवेशकों से संवाद कार्यक्रम अभी उन्होंने हाल ही में संबोधित किया और वहां के जो इन्वेस्टर्स थे उनको आमंत्रित किया कि महाराष्ट्र में तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आइए और निवेश बढ़ाइए।
Shri Chandramouli Ji Shukla, Managing Director, MPIDC, distinguished dignitaries on the dais, and also all our esteemed guests and dignitaries. I believe today has been quite a wonderful day, apart from the little delays that have taken place for whatever logistical reasons. It is a very befitting moment that you have the Honorable Chief Minister Sahib from Madhya Pradesh, the largest landmass in India, if I'm not mistaken. The name is Madhya Pradesh, which means it is the center of India. It's a place where our Honorable Mukhyamantri Ji is born, in Ujjain, the land of Shri Mahakal. May I say Har Har Mahadev. God always blesses everybody. We go back, sir, thousands of years, as you just mentioned. Somebody mentioned the Rig Veda was 1 lakh years old. We are yet trying to reconfirm that through some scientific work. And India is not a country. It's a nation, a civilization that has withstood the test of time. In spite of, from 1,000 years ago, when we had a GDP, a world GDP of 25%, today we are 2.5%. It was a country right till 1757, till the British came to India, and we still maintained those high GDP levels. We had Nalanda, where you had 160 countries sending their students for training. And it's a legacy that we have to reclaim and regain. Whatever has been broken can be remade. Because we have all the information by word of mouth, or most of it, and the rest can be done. And that is one of the reasons why India is shining intellectually. Coming back to Madhya Pradesh, I work with them. I represent FIO. I'm the Vice President. My name is Ravikant Kapoor. We are already working with Madhya Pradesh as part of the western region, which Saab just mentioned, that with Maharashtra and Madhya Pradesh, also we have Gujarat and Goa. So we from the Bombay region or the Mumbai region are representing them and also trying to see that exports can go up from the entire region. We find that there are... मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। प्रदेश में सभी प्रकार के सेक्टर में एमएसएमई, हेवी उद्योग, रोजगार परक कई सारे क्षेत्र, इसमें हेल्थ का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, हॉस्पिटलिटी या अन्य प्रकार के सभी क्षेत्रों में रियल एस्टेट्स लगा करके हमारे सभी प्रकार की फसलों को लेकर के भविष्य की संभावना वाले क्षेत्रों में हमने अपने माइनिंग के सेक्टर से उठा करके सारे क्षेत्रों की बात की है। और 18 प्रकार की शासन की पॉलिसियाँ भी मध्य प्रदेश में आज सरप्लस ब्लड बैंक है, पर्याप्त रूप से ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से रोड की बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे 9 एयरपोर्ट है जिनके भविष्य में आवागमन की दृष्टि से इन सारी चीज़ों का लाभ हमारे उपभोक्ताओं के साथ निवेशकों को भी दे सकें। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जा करके भी हम अपने निवेशकों के लिए आकर्षक पॉलिसियों के बलबूते पर पिछले फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में GIS में भी हमने बड़े पैमाने पर पिछले साल के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश उस समय आमंत्रित किए थे। उसके बाद से भी हमारा पूरा वर्ष 2025 का रोजगार और उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया था। 3 दिन पहले मैं गुवाहाटी था और आज जब मैं मुंबई आया हूँ, यहाँ हमने अपने सेशन में ही कई सारे निवेशकों ने लगभग 50,000 करोड़ के निवेशकों की मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने की अपनी संभावना बताई, जिसको हमने अपील किए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सारे निवेशक जो मध्य प्रदेश में भी काम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी काम करें। हम दोनों राज्य आपस में मिलजुल करके कई हमारे साझा संबंध भी महाराज शिवाजी उनके बाद लगा करके हमारे लिए बड़े बड़े राजघराने से महाराष्ट्र से आकर के सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, हमारा
गौरवशाली संबंध है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से निवेशकों ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी उनका स्वागत करता हूँ और ये हमारा साझा संबंध यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राज्य भी आगे बढ़े, महाराष्ट्र भी आगे बढ़े और कुल मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लगातार हम इस प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे इस क्रम को और आगे जारी रखेंगे। सर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं क्योंकि उसमें समाधान कम लगता है? डिफेंस में भी हमारे यहाँ कॉरिडोर टाइप बना है। हमारे यहाँ जबलपुर बहुत अच्छा डिफेंस, सागर, महू, ये हमारे एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिस्से भी होंगे। मैं एक नहीं सभी सेक्टर में समझूँ। सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आज मुंबई में थे 2 देश दौरे पे, वहीं यूके के प्रधानमंत्री मुंबई में है, कह सकते हैं देश में अपने इंडिया में दोनों मुलाकात हुई है। कितना इंपॉर्टेंट मुलाकात को देखते हैं? क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में इंपॉर्टेंट एकदम काफ़ी प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ वो सारी संभावना अपने आप आती है और उन्होंने दिखा दिया कि 10 साल 11 साल के समय में जिस प्रकार से देश 11वें नंबर से चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। यह उनकी शासन की सुशासन की पद्धति जिसके भरोसे से व्यापार व्यवसाय भी बढ़ रहा है और सभी सेक्टर में भारत की मान सम्मान की वृद्धि होते हुए आम जनजीवन भी खुशहाल हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारी महाराष्ट्र की जनता को सबको हार्दिक प्रणाम भी और उम्मीद करेंगे हमारे राज्य महाराष्ट्र और प्रदेश के संबंध इस विजिट के बाद और मजबूत होंगे। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे विभिन्न सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। तो किसी के साथ जो लोग मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया, साथ ही साथ कहा कि आगे आने वाले जो दिन है मध्य प्रदेश को आगे हमें बढ़ाना है और कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से डेवलप करना है और इसी के कारण निवेशक जो निवेश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कई अलग अलग सेक्टर्स में जो निवेश आ रहा है उसको आगे बढ़ाना है।